Welcome to the first episode of Hip Hop with my G Manager Edition. I am Sahil and today with us we have the super talented OG of Dehradun Hip Hop. He's been a stunt rider, he's a filmmaker, he's a manager of many young rappers now who are budding in the city. Welcome to our show, Lakshay bhai. Yeah, Lucky thank bhaiya, you. aka Lucky. Welcome to our show. Thank you for How are inviting you? me यार, like and I'm all right, doing fine. हम लोग तो काफी चिल कर हम चुके हैं तो काफी chill किए, सिर्फ कैमरा के लिए एकदम कैमरा के लिए बहुत कॉन्शियस presumptuous ये हो रहा है थोड़ा अजीब सा हो रहा है अब तो. हाँ, लेकिन but it is what it is. It is what it is. We have to do this, and Yeah. I was so happy when I first met Lucky Bhaiya. I didn't thought of. I actually, to be honest, Lucky Bhaiya, because his nickname is Lucky. हम काफी close हो चुके तो I can call him Lucky now. He does not have a problem with that. Yeah, absolutely not. So I thought he would be a rude person to like, yeah, we'll do this like this, and we do, and he was like, भाई यार, अब जो आप बोलो वो हो जाएगा, बस आप बोलो. नहीं यार, And I I'm felt just trying to add felt my expertise, whatever so I humble learned. and so blessed. अरे, I felt so blessed, man. Thank you so much Thank you. for coming into my life since past month. और जो भी हमने अरे उसमें यार. progressions करी हैं, thank you so much for that first of all. Thank you for having me, man. Thank you for having me and जो भी अभी intro दिया ये बहुत अभी grand हो अभी गया. तो बहुत we'll get to know more about you. I'll add नहीं. your clips, especially in between of these lines. Sure, na? you can. Your 90-degree stoppies from 11 yeah, that years. was real back, man. 11 years like back, no? 2009. 9. Yeah, I remember. More than 10 years ago. So, like we started off with पता नहीं बहुत सारी चीजें करी. बहुत ही I'm glad that you are here, man, and you're doing this thing. And ये पहला episode है and हमको मौका मिला है आने का तो like please go and kind of do subscribe these like हमारा अभी वो भी आने वाला है सारे rappers के साथ इसने करा है अभी interview and वो बहुत भी अभी आएगा. बहुत sick. Actually, this will drop after this, I guess. अच्छा, जो हाँ. भी पहले edit हो जाए. जो भी पहले edit हो जाए. yeah. Sick. So first and foremost, what have you been doing in this lockdown? क्या चल रहा है? जनरल काम को छोड़ के what have you added on? और क्या चल रहा है? ये काम बढ़ गया यार कैसा? मेरी लाइफ में तो मतलब काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई क्वारंटाइन में. लाइक मॉम के साथ भी हो गया था तो मॉम पास्ड अवे लाइक ऑन 29th में तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई एंड आई वो कैंसर से गो थ्रू कर रही थी तो मैं काफ़ी टाइम उन्हीं के साथ ही था. लॉकडाउन वॉज लाइक प्लेस वेयर आई कुड हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर तो काफ़ी मतलब वो रहा बट यही था यार मेरा लॉकडाउन की मतलब हाईलाइट तो सबसे बड़ी यही है. और उसके बाद बाकी अपने जितने भाई लोग हैं वो कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं. बहुत से काम चल रहा है बहुत से मेरे को पता है सब बिहाइंड द सीन जो चल रहा है बहुत ही कैड़ा अब इनफैक्ट वापस भी आ रहे हैं हम और वीडियोस बनाऊंगा मैं अब आके तो इसलिए Vlogs? हाँ ब्लॉग्स नहीं Happy to- ब्लॉग्स तो मैंने स्क्रैप दैट. हां लाइक इट इज टू मच कमिटमेंट एंड एक चैनल को मतलब डेडिकेटेड है यार स्केर्ड ऑफ जिंदगी. कमिटमेंट. इस Sick, इंटरव्यू के लिए भी इसने मतलब लाइक व्हाटएवर मैंने यू कैन बहुत कुछ करा है इसके लिए. से पॉडकास्ट करने के लिए भी लाइक मैं तो नहीं आना चाहता था लाइक ही सेड लाइक बट Thank it you. is Thank what it you is. so much, man. I felt very. I'm glad like seriously. So like काफी पीछे जा रहे हैं टाइम में हम. Ancient history. अच्छा all right. How did everything came around in life when you were a teenager? You started Team Evo. You were one of the co-founder with Agrim Kohli and Shardul Shardul Sharma. Sharma. Yes. Yes. So Lakshay Kanduri, Shardul Sharma and Agrim Kohli were the Yes. co-founders of Team Evolution. Tell me Yeah. about it. What was it like back in the day? लाइक यार हम लोग पहले तो लाइक हम लोग काफ़ी इधर उधर रह के स्टंट राइडिंग कर रहे थे फॉर द फैक्ट इफ यू नो कि दैट आई How वाज did like initially what? व्हाट हैपेंड वाज कि एवरीथिंग Evo. स्टार्टेड फ्रॉम Evo. स्टंट राइडिंग Okay. फॉर माय लाइफ लाइक एवरीथिंग. Okay. तो if you talk about that Evo is a product of that wing and equally Agrim and Shardul का जो passion था. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि ईवो मतलब कैसे आया और क्या हुआ तो लाइक आई कैन जस्ट टेल यू अबाउट दैट. हम स्टंट राइडर्स थे एंड वी वर वेरी लाइक हम लोग जहाँ भी जाते थे हम स्टंट राइडिंग नहीं कर पाते तो काफ़ी रैडिकल चीज़ थी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो हमने सोचा क्यों ना वी कम टुगेदर एंड लॉट ऑफ पीपल डिड कम टुगेदर. जस्ट नॉट वॉज शार्दुल अग्रिम एंड मी इट वॉज लॉट ऑफ पीपल दैट केम टुगेदर एंड लाइक कोर पीपल विल दीज बिकॉज ये लोग लेके आए उनको वापस सबको जोड़ा एंड हमने एक रैडिकल चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए भी टीम अप तो वी कॉल्ड इट इवोल्यूशन. हमको इवॉल्व करना था लोगों को माइंडसेट भी
and we named it like a process, and the name in fact was given by कुमुद भैया. तो वो हरिद्वार में हमारा एक विंग था, तो हमारा जब स्टार्ट हुआ तो हम हरिद्वार में और यहाँ स्टार्ट हुए देहरादून में. अच्छा. इवोल्यूशन ऐसे स्टार्ट हुआ. हाँ, स्टंट से. तो वो बाइक में करते थे ज़्यादा और हम नॉन गियर में करते थे, मतलब तो हमारा एक अच्छा, हाँ, अच्छा एक वाइब बन रहा था. तो हमने रेडिकली, मतलब ये रेडिकल पर्सपेक्टिव सोच के हमने इसको एक रख दिखाया और टीम भी वो आया कि यार हमें लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज करना है. एंड वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द जर्नी. हाँ, हम लोगों ने करा काफ़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट था. हाँ, ये मतलब सिर्फ इसलिए था कि जो लोग नहीं समझ पाते उनको समझाना है किसी तरह. उसी लिए हमने फिल्म मेकिंग भी ऑप्ट करी थी उसी वक्त जब हम डॉक्यूमेंट करके आगे दिखाना शुरू करा. हमने वीडियोस इनफैक्ट हमने काफ़ी लेट डाले. हमने 2008 में डालना शुरू करते, 7 या 8 में. 7 में हमने यूट्यूब चैनल बनाया था अपना जब हम फॉर्म हुए थे. इवो इंडिया. हाँ, टीम एवोल्यूशन इंडिया. तो like it was long time back, like 13 years ago. Sick, man, sick. Like 13 years, man. It's a 13. long time. I was what? Brief part of like 70, 80. Like हाँ, ऐसे ही रहूँगा. हाँ. Sick, man. हाँ. Now look where. नहीं अभी भी कर ही रहे हैं यार. We just अभी भी है. इन्वेस्टमेंट चलता रहता है और काम चलता रहता है. मतलब टाइम में एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है. टाइम ऑब्वियसली, बिकॉज फिल्म मेकिंग और भी नए नए टैलेंट्स कितने सारे आ रहे हैं. और आपको क्या क्या अप्रोचेस आ रही है और सब कुछ डील वील. हाँ, बहुत सारी चीजें. मैं आपका स्केड्यूल देखता हूँ. आज ही इनफैक्ट कितना हैवी हो रखा था यार. लाइक बीच में हम लोगों ने हमने फकअप्स करे थोड़े. आप फिल अप करते रहे उसके लिए. नहीं कोई बात नहीं यार. आई एम ऑलवेज देयर मैन एंड आई ट्राई टू बी देयर. थैंक्स भाई जी. व्हाट वाज लाइक स्टंट राइडिंग? व्हाट वाज इट बैक इन द डे? What was the stunt reason? riding is was still it like that? No, it was like, was it peer pressure or you know? Why stunt riding you say? Yeah, why stunt riding? Stunt riding because of you know, there was the stunt riders have a basic thing in common is to, you know, kind of when they are very what do you say? I'm not, you know, getting the word right now, but when you're very enthusiastic about, you know, something which crosses the limits is, I think, the product is stunt riding. If I explain you in simple words, अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी से वो हो चुके हैं, मतलब क्या बोलेंगे, एक तरीके से ऊब चुके हैं. हाँ. तो तब आप क्या करते हो लाइफ में? तब आप एड्रेनलिन की तरफ जाते हो और आप रिस्क करते हो. At that time वो था एड्रेनलिन. हाँ, एंड वो होता ही होता है. एंड अब वो लोग अलग अलग चीज़ में ढूंढते हैं. कुछ लोग बंजी जंपिंग करते हैं, कुछ रेसिंग करते हैं, कुछ अलग चीज़ करते हैं, बट एड्रेनलिन इज़ द वर्ड. तो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने स्टंट राइडिंग करी, बस फैक्ट. और दूसरा यार, इट वाज अ यंग स्पोर्ट. हम बहुत जल्दी टाइम पे उसे हमने देख लिया था उसे और समझ लिया था. तो हमारे अंदर वैसे ही था कि हम लोग इस पर मतलब हमारा ड्रीम बन चुका था, मतलब कि हम एक अच्छे स्टंट राइडर हैं, जो कि हम इवेंचुअली बने भी. अच्छे स्टंट राइडर्स हम हैं, आज भी हम बहुत अच्छी स्टंट राइडिंग करते हैं. एंड इनफैक्ट हमने ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिशन जितने हैं स्टंट राइडिंग के इंडिया में आज तक हुए, हमने सब जीत लिया. तो देयर इज नथिंग. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. शाउट आउट टू माय ब्रदर अंकित भास्कर यार. ही डज सिक वर्क. जेम. अभी भी बाइक कस्टम करते रहते हैं. स्टोरी देखता हूं. वो भाई द रियल ओजी. Salute to that guy, man. And he looks like a very young guy. I met him that day in the basement and I didn't recognize him. Fuck, he's Ankit. And he's so humble at all. Everybody in this house, man. I have to talk about this house, right? When you enter this house, you just feel a vibe of positivity and brotherhood towards everyone in the house, and from like it's reciprocating to you. इतनी positive energy और brotherhood. Thank you so much. Thank you so much. Check कुछ भी हो, anything. If either you're having food, discussing music, you know, smoking up, anything you do, you feel a lot of brotherhood. So मेरा ना initial ऐसा था कि usually वहाँ पे उस टाइम पे ना तो ऐसा कुछ नहीं होता था. जैसे हमारी लाइफ और आपका टीनेज और मेरे टीनेज में बहुत डिफरेंस था. हाँ है. My teenage was, you know, was with social media, was with और other social बहुत changes हुए, है ना. मेरे साथ के जो मेरे साथ बड़े हो रहे थे वो अलग थे. Back in the day, stunt riding was maybe one of the thing which entertained you. बहुत कम चीजें थी जैसे उस टाइम पे. हाँ, like sports ही है वो यार. Like it's like basketball or cricket. Yeah, exactly. हाँ, so it's like अब आप किस चीज में पड़ जाते हो, मतलब like साइकिल में देखो सब व्हीलिंग में ट्राई करते हैं. हाँ, हमने करके गिरे. हाँ, सब गिरे हैं भाई, सब. कोई भी ये नहीं बोल सकता. तो मतलब वही वाली फील है कि उसको किस हद तक, वही मैंने कहा ना, जब हद से आगे बढ़ने की जब वो हो जाती है, इवॉल्व होने की जब. तो मेरा वही क्वेश्चन था कि was it peer pressure at some point? Stunt riding कि
अगर मोहल्ले के 3 लौंडे कर रहे हैं तो चौथे को लगेगा यार मेरे को भी करना है टू फिट इन। या मेरे टाइम पे तो बहुत सारे लोग कर भी नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि पीयर प्रेशर था वो, बट वो कुछ कर गुजर जाने की जो फीलिंग है ना वो तो थी उसमें। तो वो शायद वो भी हो सकता है एक पीयर प्रेशर का वो, लेकिन पीयर प्रेशर वैसे कभी था नहीं, क्योंकि वो बहुत वैसे भी किसी को समझ में नहीं आना था। पीयर प्रेशर में तो आई वुड हैव लाइक आई एम नॉट गिविंग एन एग्जाम्पल, आई कैन थिंक ऑफ इट। मे बी मैं क्रिकेट खेल रहा होता बहुत ज़्यादा, तो वो पीयर प्रेशर हो सकता है कि मेरे को प्रूव करना है उस स्पोर्ट में। लेकिन जब वो स्पोर्ट ही नहीं कर रहा है कोई, तो लाइक कोई चैलेंजिंग ही नहीं है। चैलेंजिंग नहीं है, मतलब उस चैलेंज उस टाइम पे ये था कि क्या मेरा स्किल कितना है। So that lead us to the next question. How difficult it is to make a living out of stunt riding? Living, you know? It's impossible almost. Like I think like if there are 100 stunt riders in India, I think उनमें से सिर्फ एक बंदा कमा रहा है। अच्छा। तो it's like that. क्या stunt riders पैसा कमा पाए? ये तो राज भाई का डायलॉग है। ये तो राज भाई का डायलॉग है। राज भाई शाउट आउट। ये देखो, वैसे भी आप ये देखो कि आपके उस पे चल रहे हैं नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और राज भाई पता है खुश हो गए देख के, क्योंकि आप बोल रहे हो। हाँ, लेकिन वो तो है यार, राज भाई का बड़ा मैंने क्या नहीं करा हुआ यार, सपोर्ट करा हुआ। हम यहीं इनफैक्ट जहाँ पे भी हम बैठे हुए यहीं बैठे रहते थे। एंड मैंने उनको ऐसे एक इंटरव्यू करा था, वो अभी इनफैक्ट मेरा ब्लॉगिंग चैनल लीड हो गया, उसमें था 1.5 घंटे का इंटरव्यू था। वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत मजा आया था उसमें भी। सुपर सिक। व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई एम सॉरी। लिविंग आउट ऑफ स्टंट। हाँ, लिविंग आउट ऑफ स्टंट। एज आई टोल्ड यू, लाइक 100 में से एक बंदा कमा पा रहा है, तो इट्स लाइक 1%। सो दैट्स व्हाई आई रिसेंटली गॉट दिस फेसबुक मेमोरी बैक। उसमें पता है क्या आया कि मैंने कहीं 2011 में लिखा होगा कि मैं किसी को ऐसी चीज़ क्यों सिखाऊं जिसमें पैसे ही नहीं कमाए जा सकते। ऐसे कि मतलब कुछ इमोशनल ना, रात को 4 बजे का अपलोडेड मतलब सुबह के 4 बजे का स्टेटस अपलोडेड, आज मेमोरी में आया मेरे। तो मैंने जब उसे देखा तो मैंने कहा यार इट्स स्टिल सेम, लाइक देयर इज नो चेंज। हाँ, देयर इज नो। हमें शर्म आती है 5 साल पुरानी फोटो देख के अपनी। हाँ यार, लाइक हमें लगता है यार व्हाट, मतलब लाइक हमने अचीवमेंट्स आर समथिंग एल्स, बट ब्रेकिंग अ टैबू इज अ generation wide thing we're talking about. So ये वो generations का काम है। See, many things have like taboo break हो गया है। Stunt riding का अभी तक नहीं हुआ। Rap was a taboo 4 years back, अब नहीं है। अब नहीं है। Like after Gully Boy और बहुत सारी चीजें, series of events हुए। वही होता है यार, as you have to make it acceptable and there are multiple ways of doing it, but that is propaganda as well. Agendas that we don't believe in. Yeah. If we have to push in agendas and propagandas, तो हम लोग बहुत पहले कर चुके होते हैं। We could have developed a lot of drama, emotion, and we know how to change audiences' perspective. Yeah. Because मैं खुद filmmaker हूँ and मैं मतलब like I've been making films for brands like BMW, like now Royal Enfield, like getting my point. Yeah. So I know how the things work. सो दैट इज़ माई पॉइंट कि तो हम लोग कर सकते थे, बट हमारा प्रोपागेंडा कुछ फोर्स करने का है ही नहीं यार। एंड टैबू ब्रेक तो ऑटोमेटिकली होगा। लाइक वो है ना कि अगर मैं आज अपने पेरेंट्स से जाके बोलूं कि आई वांट टू बी अ स्टंट राइडर, वो नहीं मानेंगे, बट शायद म्यूजिशियन बोलूं तो शायद मान जाएंगे। परसेंटेज उसकी ज्यादा है। हाँ, ये तो है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसा नहीं है। हमारे जितने राइडर्स हैं, बट उनके थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। वो तो अलग लीग के हैं सर। हाँ, एक्सेप्शन, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाँ, तो उनके मतलब लाइक मैं तो खैर वो मानता हूँ कि वी आर पापा ब्लेस्ड। मुझे बोलेंगे कल सर्विस कराइए, तू फोड़ ले से जाके। That's the thing. But we are blessed यार, like हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट करा। That's why we are what we are. So, like your worst experiences, what have they been as a stunt rider in the society? Not parents, like relatives in society. Like पड़ोस की आंटी अपने बेटे को बोलती है लकी के साथ नहीं घूमना। मैं बहुत, हाँ, ये तो I was the bad guy always in everybody's perspective until we did something that was people can be proud of. उसके बाद से सब चेंज हो गया। उससे पहले तो था काफ़ी, but it's all right यार, it happens, like बहुत सारी चीज़ें होती हैं। Any incident you'd like to share? There was a time I was like क्या बोलेंगे यार उसे, यार बहुत बेइज्जती हुई मेरी यार, मतलब पुलिस ने मेरी बहुत बेइज्जती करी मेरे को पकड़ के। और बट वो मैं इससे सीखा भी काफ़ी सारी चीज़ें कि यार कभी भी आप कुछ हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइक मैं सीखा भी। बट दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ह्यूमिलेटेड फील हुआ। अच्छा। तो वो मुझे सबसे बुरा लगता है लाइफ में क्योंकि मैं कभी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं
मतलब अटेम्प्ट करता कि यार किसी को, मैं तो अगर कोई मेरे को रोकता है तो मैं चुपचाप रुक जाता हूँ, कहते सीज होनी, मैंने कहा ले जाओ मैं वाला बंदा हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं है पढ़ना ही नहीं तो वो सीन है, हाँ रहने दो, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होगी कि अब करना ही नहीं यार ये सब। तो वो एक लगता है मुझे इंसिडेंट कि मैं काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील करा बस। बाकी यार लोगों के पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि तुम क्या कर रहे हो बच्चे के साथ, और ये वो पता नहीं, बिगाड़ रहे हो मेरे बेटे को। हाँ ये सब भी बहुत मेरे हुआ है बेटे मेरे से दूर रहो। साथ, हाँ ये सब भी वो हुआ Three है, Idiots वाला सीन। हाँ ये सब भी हुआ है। बट मैंने देखा कि मैं बोलूँगा 99% लोग हमारे से बहुत सपोर्टिव हैं हमारे पेरेंट्स। हाँ एक आधा कोई है मतलब, तो वो होता है, ज़्यादा जरूरी होता है हाँ उसको लेकिन prove वो करने के लिए। लेकिन वो क्वेश्चंस भी कर देते हैं ना आपको, आपको चैलेंज भी तो करते हैं वो। सो आई डोंट टेक देम एज प्रॉब्लम्स और यू नो स्टेटमेंट्स एंड यू नो लाइक समथिंग, They are motivation to push the limits. हाँ वो चैलेंजेस हैं, उनको प्रूफ भी तो करना है हमें कि यार जो आपने हमसे बोला क्या हम कर पाए। तो ये क्वेश्चन है मतलब लाइक इट इज़ अ चैलेंज एंड इट ऑलवेज पुशेस यू, एंड आई थिंक एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट यार। जैसे हमें आज की मैं कमेंट्स भी मैं कभी कभी पढ़ता हूँ तो चैनल पे जाके, तो पता नहीं लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली होती है, फीडबैक्स होते हैं एंड वी टेक इट इन द राइट वे। Aniket just told me that you have 0.2% dislike ratio. Yes. Man, that's like many YouTubers want to achieve this shit, you know, right? Point 02 नहीं, point 02. 0.02. हाँ 0.02. Sick man, sick shit. 0.2 हो जाएगा ना वरना 0.02 है। 0.02 is like वही वाले अंकल आंटी होंगे वो। नहीं ऐसा नहीं, उनका तो अब कमिटमेंट चेंज हो गया है, लाइक अब उनका देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। आंखें फटी रहेगी ना उनकी। हमने कोशिश करी यार अपनी, यार जो भी हम कर सकते हैं, एंड वी बीन ट्राइंग टू, एंड आज भी मैं यही बोल रहा था लाइक यू वर सेइंग कि यार आप क्या ये सब, स्टिल ट्राइंग यार, स्टिल डूइंग आवर बिट, Sick man, and respect man. keep doing, we'll keep doing it. Respect man, lot of respect to you man. Thank you so much. Thank you मतलब so much. if I Vice I versa. cannot say this enough, you know, this thing. For the things you have done for the city. नहीं यार, like I have not, the team has. हाँ, like you know, like initial effort किसी का जरूरी होता है ना, वो push देना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? हाँ कि तू कर गाना रिकॉर्ड, मैं अपने चैनल से लॉन्च करूंगा। लेकिन यार हाँ, बट पता है ऐसा हुआ नहीं, बहुत नेचुरल है वो, पता देखने में लगता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ना सूडो थिंकिंग क्या कहती है कि एक लेबल है, वहाँ पे एक मैनेजर है, वहाँ पे कोई गाना लेके जाता है, कोई गाना चूज होता है, फिर उसका वीडियो बनता है। Just for clarity, Team Evolution is not a label. How do you like to define it? Team, यार टीम और मतलब like इतने essential Have chronology you seen, इसमें। मैं आपको बताता हूँ, I will give you an example. Sorry to cut you, just fine. Real Madrid, if you know, if Yeah, you see Real Madrid, football, yeah, I know. and Barcelona if you see, तो like उसका एक बार एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हाँ. उसमें प्लेयर्स हैं और like 10-11 whatever, like प्लेयर्स हैं, फिर उसके बाद एक पूरी कोचिंग टीम है, फिर एक मैनेजमेंट टीम है, फिर उसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस चीज़ का। तो अगर आप उस तरीके से देखो तो सबका इक्वल काम है, बस कुछ लोग वैसे हैं, तो मैं इसको टीम की तरह ही लेता हूँ, लाइक हाउ टीम्स आर परफॉर्मिंग, so it's a team. So that leads me to the next question. How did hip hop came into evolution, the team evolution? You know, Hip hop came, and like the second Sorry. part of the question is that what are the chronology of the art forms? Like it started back in the day from stunt writing. And tell me the chronology year by year, क्या कैसे आया, like graffiti like came year after याद that. नहीं है मुझे, नहीं year तो नहीं, मतलब फिर भी chronology थोड़ी हाँ बहुत वो याद है मुझे कि कैसे क्या आया, क्या कैसे कौन क्या लेके आया, किस तरीके से आया, वही सब चीज़ें हैं। You started First- stunt writing. सो फर्स्ट पहले क्रोनोलॉजी वाला करता हूँ मैं आपका आंसर कि सबसे पहले स्टंट राइडिंग थी, क्योंकि उसी से रेडिकल का आइडिया आया। देन आफ्टर दैट ना अगरिम यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ पेंट वर्क एंड आर्ट वर्क, so he was like in fact in which the house that we are in as of now is being built by him. Yeah, I know. So you're getting his Super way of talented freaks, man. हाँ, his way of thinking and looking at world is very different. तो जब मैं पहली बार उससे मिला तो मैंने उसका, हमसे दोस्त बने, हम म्यूजिक के थ्रू बने, and he wanted to film us. तो वहाँ से फिल्म मेकिंग का प्रोडक्शन वाला एस्पेक्ट आया, एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग बिकॉज देयर वाज नोबडी हु वांटेड टू एडिट। Okay. सो वाला मेरे को scene करना पड़ेगा। तो आई हैड टू डू इट, बट आई एंजॉय इट द मोस्ट राइट नाउ बिकॉज Obviously. हाँ। I'm doing it for 10 years now. Yeah. अगर टेक्नोलॉजी देखो तो स्टंट राइडिंग के बाद फिल्म मेकिंग आई और Okay. ग्राफिटी आई, Graffiti तरीके से, आई। क्योंकि हमें अपनी राइट्स को स्टैंड आउट करना था। आफ्टर दैट मतलब लाइक डांस आया, जब मैं सूरज और प्रवेश भाई से मिला,
Pravesh Bhai, the legendary. Pravesh Bhai OG. I'll drop his link. Follow me on Instagram. See his dance videos in and he doesn't practice that. वो जब जैसे रिकॉर्डिंग ऑन हुई और बीट पे हाँ वो फ्रीस्टाइल है. मतलब लाइक उसका मैंने मतलब लाइक आधे से ज़्यादा वीडियो मैंने शूट करे उनके एंड एडिट भी मैंने करे. एडिट करने का कुछ होता नहीं उसमें. वही हाँ सीधे सिर्फ गाने के ऊपर लगा दो उसे. तो ऐसा काम देते हैं पूरा. और इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि वो कभी मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर हमने करा था MGK का, वो था कोरियोग्राफ्ड. हमारे चैनल पे वही एक वीडियो है जो कोरियोग्राफ्ड है. अच्छा. बाकी प्रवेश भाई का और किसी का भी कोई भी डांस वीडियो है तो वो कोरियोग्राफ्ड नहीं, वो फ्री स्टाइल है. एंड आई थिंक दैट इज द रियल आर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट. तो क्योंकि वो बाउंडेशंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं होती तब आप सोचते नहीं ज़्यादा. तो दैट इज़ फ्लोइंग. इट्स अ थ्योरी ऑफ फ्लो है एक पढ़ना, तो उसमें होते हैं वो. तो वो हाँ जोन में होते हैं वो. तो मतलब लाइक इट इज़. तो फिर डांस आया प्रवेश भाई के साथ. उसके बाद डांस के बाद स्टंट राइडिंग, ग्राफिटी, डांस, फिल्म मेकिंग भी. फिल्म मेकिंग, ग्राफिटी, फिल्म मेकिंग बड़ी साथ में. हाँ बिकॉज़ एडिट करना पड़ा और राइड्स अच्छी बनानी थी. फिर जब डांस ही आ रहा था उसी वक्त रैप म्यूजिक भी आया हमारे साथ. तो हम म्यूजिक में भी हम अपने आप को उपेन, रमनीक, इनफैक्ट माय वेरी स्कूल फ्रेंड रेजर, शशांक नाम था है उसका. एंड ही जस्ट काइंड ऑफ नॉट डू म्यूजिक एनी मोर बिकॉज वो काफ़ी फ्री स्टाइल वाइब में था. मतलब समझ उसने काफ़ी ट्रैक्स बनाए, अभी रमनीक ने भी बनाए इनफैक्ट. और काफ़ी लोगों ने हमने उपेन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिप हॉप एक तरीके से बोल सकते हैं. मतलब इन दैट वे. I can't remember the year, man. Shit. The problem is, we never know when is what is when and when is what happening. मतलब like समझ रहे हो, मतलब like we cannot give it a अगर आइडिया के हिसाब से देखो कौन कब आया उस हिसाब से तुम उसे वो नहीं दे सकते. एक टाइमलाइन नहीं है मतलब उसमें. बट ऑब्वियसली जो हमने इवेंट्स करे, जो हमने चीज़ें करी, जो हमने उसकी इवेंट्स की डेट है. बट लेकिन उन चीज़ों की नहीं है डेट कि अगर आप मुझसे पूछो कि स्पेसिफिकली कि क्या कब हुआ था. दैट तो आई गेट. फिर उसके बाद हिप हॉप. हाँ हिप हॉप मतलब आने नहीं लगा, हिप हॉप कंज्यूम करने लगी वो. हाँ हिप हॉप हम सुनते तो थे बहुत पहले से, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि हम हिप हॉप म्यूजिक करेंगे. हिप हॉप तो हम थे, नेवर नोइंग. एंड यू विल नेवर नो इफ यू आर हिप हॉप until a point when you get the definition or you know like multiple definitions of it. People have multiple definition of it. It's all right. और ये सही भी है मतलब मुझे लगता है. बिकॉज सबसे बड़ा अगर फैक्टर देखो तो फ्रीडम है हिप हॉप का. तो मुझे लगता है कि अगर फ्रीडम ही नहीं है सोचने की तो हिप हॉप नहीं क्या पॉइंट है. हाँ उसको पॉइंट ही नहीं है. तो सबके लिए अपनी डेफिनेशन है. इट्स ऑल राइट. तो हमें डेफिनेशन नहीं पता थी लेकिन हम हिप हॉप थे, मुझे ऐसा लगता है. हाँ एंड हिप हॉप बिकॉज़ ही वाज स्टैंडिंग आउट टू द सोसाइटी. बस यही चीज़ है. हाँ ये भी था. एंड हम फ्रीली सोचते थे एंड हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे एंड हम नॉलेज ले रहे थे एंड दे भी रहे थे नॉलेज. लेकिन तो मुझे लगता है कि मूवमेंट और नॉलेज तो हिप हॉप हम कनेक्ट हो गए. क्या क्या और आर्ट फॉर्म्स है. फिर उसके बाद रैप म्यूजिक आया. रैप म्यूजिक के बाद अभी हम लोग मतलब और ब्रेकिंग, बी बॉइंग और इन सब चीज़ों में. फिर डीजेइंग पम्मी के साथ काफ़ी. पम्मी डीजे पम्मी. हाँ आई नो. हाँ कब ये कितना टाइम मिला. He's married. That guy is so sick. That is like crazy. मतलब he's such a young guy and like elder at the same time. Like उपेन भाई और अग्रिम भाई, anyone. हाँ उसकी बेटी है एक. सीधा. तो हम लोग को बड़ा वो लगता है लेकिन but like he is too young at his art and his and his work. हाँ वही. बहुत सिक काम. तो फिर वही है. फिर अब सारे एलिमेंट्स आ गए. अब इनकी मुझे क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि कब क्या आया. हम तो सबको एक जैसे ही लेते हैं यार. The entire hood is the team, man. Like whoever can be of help to the players. मतलब like जब रैप स्टार्टिंग में उसके बाद like और elements of hip hop आने लगे बाद में. Beatbox, b-boying और ये सब तो मतलब हाँ ब्रेकिंग मतलब लाइक सब करते थे. प्रवेश भाई भी करते थे मतलब काफ़ी ब्रेकिंग कर रहे थे उस टाइम पे. बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करते थे. हाँ तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब लेकिन वो सब चीज़ें एक साथ ही आई मतलब उस टाइम पीरियड में. तो 3-4 साल का टाइम पीरियड है जिसमें सब चीज़ें साथ में आई. एंड उसी टाइम पे हमने फिल्म मेकिंग भी प्रोफेशनली शुरू कर दी थी. तो बीच में हमारा चैनल भी कुछ टाइम के लिए वो गया था. तो यार ये था यार. क्रोनोलॉजी तो मेरे को एग्जैक्टली ढंग से पता नहीं मतलब. काफ़ी वैसे अगर इस पे मूवी बने तो बहुत अच्छी बनेगी एक टाइम पे. हाँ इनफैक्ट हम एक वेब सीरीज सोच रहे थे. अभी भी आइडिया है, वो चल रहा है इन कॉन्वर्सेशन. अभी अंडर द टेबल है. हो सकता है ईवो फॉर लाइफ करके कुछ है. वो सिक. आई विल गेट अ टैटू. ईवो फॉर लाइफ. हाँ मेरे भी है. Sick man, sick. The first half of the question I forgot. Like how did hip hop become this? It's answered. It's answered, yeah. So like talking about hip hop, I had a question. Like you don't listen to Abbott Indian hip hop.
I guess. You know, you listen I to do. the best. Like But like in terms of in terms of research, I would say. yeah, because you have to know your market and Yeah. where you're going to. Businessman. बिजनेसमैन नहीं मतलब लाइक यार इवेंचुअली ऑल द मनी हमारे यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं है कि मतलब कि कोई मैं पैसे वैसे ले रहा हूँ या जो भी पैसा आता है वो टीम में ही आता है और टीम में ही बढ़ जाता है और बहुत बार आर्टिस्ट की पास ही आता है डायरेक्टली एंड देन उसकी उस पर होता है कि वो हाउ मच ही वांट्स टू इन्वेस्ट बैक एंड वॉट एवर वेस्ट सो what was the question? I was asking that what's like you don't listen that much to but what do you take हाँ लेकिन देखो रागा is my favorite man you मतलब respect, like man, respect for Raga. Raga is my one of the favorites and like I listen to a lot of people यार Bohemia and अगर देखो अगर बिल्कुल उसमें आ जाओगे तो I listen to Divine I listen to lot of guys यार like ऐसा नहीं है मतलब मैं सबको सुनता हूँ and I love their work and I admire their work in fact and lot of people like और जो लोग टीम्स के साथ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल गली गैंग आई एडमायर देम अ लॉट कि मतलब लोग कर रहे हैं जैसे आर्टिस्तान कर रहा है रागा में दैट्स द मेन रीजन लाइक हाउ दे आर डूइंग इट in fact मैं आई वाज विद हाजी आई वाज डूइंग अ म्यूजिक वीडियो हाँ हाजी के साथ तो लाइक ही इज ऑसम यार लाइक मैं देसी हिप हॉप के साथ इन्वॉल्व हुआ मैंने समझा कि क्या लाइक एट अ ग्लोबल लेवल क्या है तो लाइक काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती है मिलने से एंड आई लव मतलब लाइक आई लव म्यूजिक मैन आई लव गुड म्यूजिक इट्स नॉट अबाउट जस्ट हिप हॉप बिकॉज आई लिसन टू अनदर अदर genres as well. So what's your take on the recent beefs happening in desi hip hop? What do you think about it? It's good for the culture, bad for the culture? क्योंकि अभी market बढ़ रहा है. As a business, we have to think कि ये growth पे है, but as a art also, ये growth पे है. दोनों का ग्राफ ऊपर जा रहा है. उसमें कुछ गलत नहीं है. तो उसमें क्या इफेक्ट आता है और for the like भाईचारे वाली बात है like you're talking to people in Delhi, you're talking to people in Bombay, you're talking to people in Nepal, you're talking to people in the Northeast. हम सबसे अभी तो हर जगह कनेक्टेड है हर जगह कनेक्ट सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट हमने तो सब अपने साथ सबके लिंक्स अच्छे हैं व्हाट्स योर टेक अदर पीपल फाइटिंग मतलब like beef is sad man it's sad for hip hop in simple words it's really sad I just have to say that there is nothing else that I can add to it and it will eventually the repercussions are much worse than we can think of whatever artist you have sometime ऐसा भी होता है कि वो इतने हद पे चली जाती है कि यू डोंट इवन काइंड ऑफ टॉक टू दोज पीपल यू कांट फेस देम इन पब्लिक गैदरिंग्स लाइक वो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है एंड इंडियन हिप हॉप शुड नॉट गो देयर एट ऑल दैट इज माय टेक एंड इट्स सैड so we were talking about the roster of the team like this like people might be asking you कि 4 rapper हैं what are you adding what are you subtracting tell your views about it you want to add people more like more people but this is not up to me primarily because how we operate are in wings like for example if you talk about rap music and hip hop music that we're doing it's been kind of led by Upen, Dakat, Two Fisted, Aniket so if you imagine तो उन्हीं के बोलने पे होगा कुछ because I also am following their vision you getting a point yeah so it's not the other way around so like and obviously there are co-visions that we come up with and if there is somebody that these guys will think and maybe the entire team thinks should be a part of we'll not say the roster we'll say part of the team so it will be like nobody can stop him then cool so it has to be someone who just kind of comes with a wave the vibe should connect the vibe should connect उन पे सब कुछ artist so this is a very अलग signature है ego का कि everything is artist based because the people who formed it were artists themselves so like we understand what artist kind of thinks and how he operates and what surroundings are required for a great product to come like that is the kind of things वहीं पे हमारा थोड़ा बहुत experience है जो हम कर रहे हैं क्योंकि we kind of handle a 50 people team as of now and like professionally we have a 50 people team like for making films like so you can get it the kind of teams that we are operating with so we understand what is required for a particular vision to thrive that's all together another thing cool so let's
wind it up, and I'll ask you the last question for the day, for the night. For the night. It's night now. What's the ultimate goal of Evo? What does Evo want to penetrate? तब और अब और जब आप नहीं रहो दुनिया में तो Evo क्या रहेगा? Evolution तो कोई रोक नहीं सकता, मतलब it's a evolution तो constant is the only constant. Is the only constant. Change. So like वो तो कभी नहीं रुक सकता, because I think everybody has that vibe, and it is not about यार आज तक हमने ना कोई पेपर साइन करे हैं ना हमने कुछ करा है. People are like just bonded together, man, and that is how we operate. तो मुझे लगता है कि यार वो आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो it's completely upon that value brotherhood जो हमारी है, कि वो कब तक इस दुनिया में सस्टेन हो सकती है, एंड आई थिंक फॉरएवर रहेगी. तभी हम यूवो फॉर लाइफ बोलते हैं. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द गोल ऑफ इवोल्यूशन, तो गोल तो नहीं बोलेंगे, एक विजन बोलेंगे है इवोल्यूशन का, टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर्स आउट देयर. Sick, man. Sick. So this is what we intend to do, because an artist always seeks recognition. Exactly. Maybe a lot of times कोई वैल्यू ना मिले. हाँ, कोई अगर आके बोलते कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा करा, मतलब कितना अच्छा लगता है कोई जब कोई आर्ट को अप्रिशिएट कर लेता है, जब एडमायर कर लेता है, तो मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट है हमारे लिए वो चीज़. Exactly. And we are respecting the artists out there and the audience, our audience in fact, by giving them very good content that they need, है ना, and whatever the vibes of these artists are. तो ये respect कर रहे हैं अपने आप को, audience ये respect करिए, respect. Just love and respect. Love and respect. And the propagating brotherhood. And propagating नहीं बोलेंगे यार. Promoting. हाँ. Promoting. हाँ. Promoting will be right word. Revolutionary. मैं एक word बताऊँगा. Revolutionize the art. And be the best. Revolutionize the art is where I summarize the entire revolution. Why? Because revolutionize the art का मतलब हुआ क्रांति लाना art से. So like nice, वो हमारा वो है हमेशा से. Nice, but this is what it is. Sickest thing. Thank you so much for agreeing for this interview, man. I'm like you're very humble. I cannot say this enough, sometimes. You're so humble and fuck it, man. Like he's like I met you like last month. Yeah. And he has like helped me like an elder brother since then, from the first meeting, and I'm very thankful and blessed that I met him. And I entered this house, man. Evo house. Sick, man. Sick. Real shit. Yeah, that's it. बिल्कुल यार, मतलब like I'm really glad to by talking with you, because you have that eye to detail, and the kind of research you do, I'm matter of fact impressed. And like keep going on, man, and all the best, and whatever you need from us whenever we'll do. And cool. करते हैं भाई boom. Boom करते हैं. There are boom. Thank you for agreeing for this. Thank you so much. Anything you'd like to say in the end? Say it. Yeah, like I just wanted to say one thing, like पैसे वाली बात. I was speaking to you, talking about that, and I was expecting that question in fact from you, like कि अगर ऐसा कुछ आता तो मैं I would have I don't want to become Raj Jones, man. Come on. कैसी बातें कर रहे हो यार? Like I want to become Sahil Ghai, someday. Raj Jones, but respect Raj Jones. Raj Jones is a OG, man. I like love his not his work, but what he has done for hip hop through his work. That brings the love for that guy. Yeah. He posted his photo like few hours ago. We completed our anniversary, and he posted that. You के साथ से. So like he's in for like उनका तो contribution like अब मैं क्या बोलूँ, बोलते हैं कुछ लोग करके चले जाते हैं, मतलब चले के आते हैं, स्टिल देयर, मतलब लोग कर चुके होते हैं. सो इट्स अनदर लाइक मेरे को लगता है वो 5वां 6ठा सर्कल है उनका. अभी जो चल रहा है, कर रहे हैं अब डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं. सिर्फ रैप पे नहीं कर रहे हैं. हाँ, सिर्फ रैप पे नहीं, इनफैक्ट लाइक अभी हिप हॉप डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है और उसमें सब कुछ होने वाला है. रिस्पेक्ट टू राज भाई, बिग अप. एंड like if you I just wanted to say that like all the people out there who is doing music and who is doing their art forms should always look for things where they can make money, look for opportunities where you can get money, and there is no favor that anybody can do for you, so don't get into that, like charge for whatever you're doing. You have to pay your bills and collaborate. If you don't want to charge, collaborate.
like equally collaborate with people, because I think that is the way to go. And I guess what you're trying to say, make contacts and just उतना कमाओ कि रात को खाना खा लो. हाँ मतलब लाइक वो जरूरी है. एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर जगह अपॉर्चुनिटी है. वैल्यू ट्रांजैक्ट करना बहुत जरूरी है. पैसे नहीं होते खाली हर बार. वो वैल्यू आपको क्या लगे. हाँ लाइक वैल्यू है तो इट्स ऑलवेज अबाउट वैल्यू. एंड तो कोशिश रखना कि मतलब कि आगे जाके जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसमें वैल्यू आप टर्न आउट कर सको. दैट इज व्हाट आई वांट टू एंड विद. Thank you guys. Thank you for joining us. Please watch the video we shot with the team. Nah. Thank you. Big up. That is interesting, by the way. I am very boring. Thank you so much, man. I'm too much gyan. I'm too much gyan. That's why I told you like I don't want to come to this. Behind the thing. यार क्योंकि पता होता क्या है, but you just start talking and like there are multiple things that you think and सबकी definitions is right. There is no definition that you can oppress on, but there are opinions that we can give, like you said. So that's why I'm here and sitting in front of you. Matters. Opinion matters. See ya, guys. See you later. Bye bye. Bye bye.